Hello friends, this is Professor Mrinal Mehta from JG College of Commerce, Ahmedabad. Friends, today we will study Human Resource Planning. Human Resource Planning is a part of Human Resource Management subject for Semester 1 BCom students. Today we will take one of the important questions, that is meaning and importance of factor affecting human resource planning. Answer is in two parts. First, we will see the meaning, and second, we move towards the factors. Friends, human resource planning is a process of forecasting. ये एक process है जिसमें हम डिमांड और सप्लाई को फोरकास्ट करते हैं for getting the right number and the right type of the people required in the organization. We move to the second definition. This definition is given by A.R. Smith. According to him, human resource planning is a function of projection. उनके हिसाब से ये एक projection function है, where we do the projection about demand, projection of supply, and then we take action to get balance between supply and demand at the desirable level. And the desirable level is that level through which we can achieve our organizational goal. Now we go towards the factors. Friends, human resource management के planning की जब बात करते हैं, which is called as a human resource planning, human resource HRP, we have to consider two factors. First factor is internal factor and second is an external factor. When we say internal factor, it means the factors which are within the premises. मतलब suppose मैं किसी एक organization का HR planning कर रही हूँ, तो उसी organization के अंदर जो factors prevail करते हैं, उसी organization को जो factors affect करने वाले हैं, उन्हीं factors के बारे में मैं बात कर रही हूँ, जिसको हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे तब उसमें मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं, which are flexible. Second factors are external factors. Friends, external factor means factors which are not controllable, जो हमारे premises के अंदर prevail नहीं करते, ये बाहर है, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते. ये सारे की सारी इंडस्ट्री, सारी की सारी इकोनॉमिकल और नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज को अफेक्ट करने ही वाले हैं. First, let us see the internal factors. In that, most important is job requirement. Friends, when I say job requirement, it means we have to do a detailed study of a job which is called as an job analysis. This job analysis is a detailed study of what the job is, how many times it has to be done, what are the tools required, what are the technologies we are using, and how much time it will take to finish it. Along with that, what are the skills required in an individual, what should be the qualifications, and what are the risks involved in a job. When we study the job only, when I say कि क्या काम करना है, कितना टाइम लगेगा, it is called as an job description, जहां हम सिर्फ जॉब के बारे में बात करते हैं. पर when I say कि क्या skills चाहिए, क्या knowledge होना चाहिए, क्या abilities होनी चाहिए, क्या attitude होना चाहिए, उस इंसान के अंदर जो इस काम को कर रहा है, उसे हम मैनेजमेंट टर्म्स में जॉब स्पेसिफिकेशन कहते हैं. When we do job description and specification in detail, we can get the result as right number of the people required and right type of the people required in the business. Now let us move to the second internal factor, that is attrition ratio. In a simple language, attrition ratio is also known as labor turnover ratio. Labor turnover ratio means number of people, number of employees that leave your organization, quit your organization, आपके ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी रीजन से छोड़ के जा रहे हैं. मे बी रिटायरमेंट, मे बी डेथ, मे बी हेल्थ इश्यू, may be better opportunities in the market or any of the social or personal reason.
अगर हम लास्ट 5-7 years का लेबर टर्नओवर रेशियो का ट्रेंड स्टडी करते, देन ऑल्सो वी कैन गेट an idea कि how many people are required in the business, when and on what positions they are required. Now let us move to the third and most important part, that is budget. Budget is all about finance. Friends, जितना बजट होगा उसी हिसाब से प्लानिंग एक्टिविटीज होगी. अच्छा, हम कब से एचआर प्लानिंग की बात कर रहे हैं, पर एचआर प्लानिंग को आप सिर्फ रिक्रूटमेंट या गेटिंग राइट नंबर ऑफ द पीपल और राइट टाइप ऑफ द पीपल तक नहीं रख सकते हो, तो बहुत नैरो बात हो जाएगी. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का हर एक फंक्शन, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन से लेके ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, मोटिवेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल हो, चाहे रिटायरमेंट हो, सेपरेशन हो, सारी के सारे फंक्शंस को हम प्री डिजाइन या प्री प्लान करते हैं. तो व्हेन वी से एचआर प्लानिंग, इट इज नॉट जस्ट रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. हाँ फ्रेंड्स, रिमेंबर इट. सो व्हेन वी से बजट, मतलब सिर्फ रिक्रूटमेंट के लिए नहीं चाहिए हमको. वी नीड अ बजट इवन फॉर द ट्रेनिंग, इवन फॉर द प्रमोशन, इवन फॉर द सैलरी राइज. फॉर एवरी फंक्शन वी नीड फंड्स. सो बजट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. जैसा बजट होगा, जैसे फंड्स होंगे, वैसे आप प्लानिंग कर सकते हैं. मैनेजमेंट पॉलिसीज. मैनेजमेंट हैव पॉलिसीज फॉर ईच एंड एवरी फंक्शन. जैसे आगे हमने बात की थी एक बार कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मीन्स अ फॉर्मल सिस्टम ऑफ मैनेजिंग द पीपल. जब हम एक फॉर्मल सिस्टम की बात करते हैं तो डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर्मल पॉलिसीज मेंट बाय द मैनेजमेंट टू हैंडल द पीपल. हमारी रिक्रूटमेंट पॉलिसी हो, चाहे ट्रेनिंग पॉलिसी हो, चाहे प्रमोशन पॉलिसी हो, सारी पॉलिसीज हमारे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को इफेक्ट करती है. सपोज मेरी कंपनी के लिए मैंने एक रूल बनाया कि आई विल ऑलवेज हायर अ फ्रेशर्स. मेरे को नहीं चाहिए एक्सपीरियंस लोग. माई प्लानिंग मस्ट बी डिफरेंट. पर किसी एक्स लिमिटेड ने एक रूल बनाया कि नहीं भाई, हमको तो एक्सपीरियंस लोग ही चाहिए. देयर प्लानिंग मस्ट बी डिफरेंट. इफ देयर इज अ कंपनी जिसको ऐसा लगता है कि नहीं, ट्रेनिंग शुड बी गिवन इन हाउस, देयर प्लानिंग मस्ट बी डिफरेंट. शायद मेरी कंपनी और वो ऐसा सोचती है कि नहीं, ट्रेनिंग का काम हमेशा एक्सटर्नल पे होना चाहिए, एक्सटर्नल एजेंसीज को देना चाहिए. माई प्लानिंग मस्ट बी डिफरेंट. सो अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट पॉलिसीज, माई एचआर प्लानिंग इज affected. Last is an economical condition. जितना economical condition अच्छी होगी कंपनी की, उतना ही हमारा HR प्लानिंग ज़्यादा स्ट्रांग होगा. क्योंकि हर बात के लिए, जैसे हमने बजट के अंदर देखा कि जब HR बजट जितना अलॉट होता है उसके हिसाब से प्लानिंग होती है, वैसे ही अगर कंपनी इकोनॉमिकली साउंड है तो उनके लिए सारे फंक्शंस करना ईजी हो जाएगा. पर अगर कंपनी की इकोनॉमिकल कंडीशन ओके है तो it is definitely affecting HR planning in a different way. So friends, these are the controllable factors. हम चाहे तो इसमें छोटे बड़े changes as per the market requirement कर सकते हैं. Now let us move to the external factors. अब ये हमारे हाथ में नहीं है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते. सबसे पहले देखते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी. गवर्नमेंट की पॉलिसी सीधा सीधा हमारे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को अफेक्ट करेगा. जैसे गवर्नमेंट का डिसेबल पीपल के लिए पॉलिसी, फिजिकली चैलेंज पीपल के लिए पॉलिसी, विमेन्स के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी और बहुत सारे अदर पॉलिसीज. वी हैव टू कंसिडर ऑल दिस पॉलिसी व्हेन वी आर डूइंग अवर एचआर प्लानिंग. इवन जॉब प्रोटेक्शन एक्ट भी है, उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा. सो गवर्नमेंट पॉलिसी इज द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड इज लेबर लॉ, मिनिमम वेज एक्ट, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट, प्रोविडेंट फंड एक्ट, पेंशन, जॉब सिक्योरिटी एक्ट. ऐसे बहुत सारे लेबर लॉज हैं जिनको हमें कंसिडर करना होगा while डिजाइनिंग द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस. फ्रेंड्स, अगर एक सिंपल सा एग्जांपल ले कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर वुमेन को काम करने से, नाइट शिफ्ट में काम करने से मना किया हुआ है. अगर आपको लेना है उन्हें, देन यू हैव टू गिव डिफरेंट सिक्योरिटीज टू हर. तो वो भी आपके एचआर प्लानिंग को अफेक्ट करेगी. फिर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. आपके कंट्री, आप जिस जगह पर काम कर रहे हैं, आपका जहां एस्टैब्लिशमेंट है, वो कंट्री का रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली अफेक्ट करेगा. अगर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज वेरी हाई, द सप्लाई विल बी हाई. इफ रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज लो, सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मस्ट बी लो. तो हमें दोनों में हमारा प्लानिंग डिफरेंस आएगा. फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज ट्रेड साइकिल.
हम सब जानते हैं कि बिजनेस के अंदर अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। दोनों का अपना ही इफेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर। अगर हम एक एग्जांपल देखते हैं तो हमारी जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड बढ़ गया है मार्केट में, बिकॉज वी आर इन अ बूम फेज। तब हमें एक्स्ट्रा लोगों की जरूरत पड़ेगी हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। एंड रिवर्स इन द केस ऑफ स्लैक टाइम। लोकल कस्टम्स, फ्रेंड्स, हम लोकल कस्टम्स, रिचुअल्स या सोशल कस्टम्स को इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे हर स्टेट, हर सिटी का अपना कुछ एक सोशल माइंडसेट है, एक लोकल कस्टम है जिसको वो फॉलो करते हैं। एंड एज एन एचआर प्लानर हमें भी उसे कंसिडर करना होगा। मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, मुझे दूसरे स्टेट्स का पता नहीं, पर गुजरात के अंदर स्पेशली कंस्ट्रक्शन बिजनेस के अंदर जो लेबर्स है वो अमावस्या के दिन काम नहीं करते, तो उसको भी कंसिडरेशन में लेना होगा व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर ह्यूमन रिसोर्स। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी फटाफट बदलती है। अकॉर्डिंगली वी हैव टू चेंज अवर पीपल, बट वी कैन नॉट चेंज द पीपल। वी हैव टू ट्रेन पीपल टू एक्सेप्ट द चेंजेस, एक्सेप्ट द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। हम लोगों को नहीं बदल सकते क्योंकि गवर्नमेंट के नॉर्म्स है और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहेगा कि उनको छोड़कर लोग जाते रहे और नए लोग आते रहे। तब हम क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी तो चेंज हो रही है, अब उसको बैलेंस करने के लिए वी हैव टू इम्पार्ट देम अ ट्रेनिंग, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी को चेंज होते हुए तो नहीं रोक सकते। तो अगेन इट इज अफेक्टिंग अवर प्लानिंग साइकिल। लास्ट इज अ पॉलिटिकल फैक्टर। किसी भी कंट्री के अंदर आप जाओ, आज की डेट में तो हम ग्लोबल वर्ल्ड या ग्लोबल बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में अगर छोटा सा पॉलिटिकल चेंज आता है उसका सीधा इफेक्ट हमारे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के ऊपर आएगा। पर हम उतना हाईएस्ट लेवल पे नहीं देख रहे, हम सिर्फ अपने लेवल पे देखते हैं फ्रेंड्स। तो इंडिया के अंदर अगर गवर्नमेंट बदलती है या पॉलिटिकल पार्टी बदलती है तो डेफिनेटली जो पॉलिसीज है उसमें छोटे बड़े चेंजेस आएंगे। अगर ये ऑफेंड होता रहा तो हर 2 साल में कोई नया आ गया तो पॉलिसी की स्टेबिलिटीज मेंटेन नहीं होगी। उस वक्त हमारे लिए लॉन्ग टर्म एचआर प्लानिंग करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि जो पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाएगी उसको डेफिनेटली हमें इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, these are the factors which affect human resource planning. अगर नटशेल में बात करें तो सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल सारे के सारे फैक्टर्स हमारे बिजनेस के प्लानिंग को या हमारे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को डेफिनेटली अफेक्ट करेंगे और करते ही है। सो फ्रेंड्स, व्हेन वी से ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, प्लीज don't put it up to recruitment and selection. It involves each and every activity of human resource management. Okay? Thank you, friends. Bye-bye. Take care.